Hello students, good afternoon. Myself Avdesh Kumar Chaudhary. I am going to teach class 7 subject English reader chapter first 3 questions. Chapter first 3 questions. Three questions. Students, I am going to start to translate into English to Hindi. So every students open your book page number first, chapter first. Before you read, I'm going to start. A king has 3 questions and he is seeking answer to them. What are the questions? Does the king get what he wants? एक राजा जिसके 3 प्रश्न हैं और वह अब इन प्रश्नों के जवाब ढूंढ रहा है। क्या प्रश्न हैं? उसके प्रश्न क्या हैं और क्या राजा उस प्रश्न का जवाब प्राप्त करना चाहता है? आइए हम इस चैप्टर को रीड करके इसका आंसर को प्राप्त करते हैं। Okay, I'm going to read this chapter, paragraph first. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important things for him to do. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, he said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish results, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decisions of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. A few others chose the doctors, and 8 others said that his soldiers were the most necessary. To the third question, some said science, others chose fighting, and 8 others religious worship. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but people, simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. विचार आया, एक निश्चित विचार आया कि राजा किसी चीज को जानने में असफल था कि वह 3 प्रश्न के जवाब क्या थे। ये 3 प्रश्न थे कि किसी कार्य को शुरू करने के लिए सही समय क्या होता है, किस व्यक्ति की बातों को उसे सुनना चाहिए
और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु उसे करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, या सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए क्या है। राजा फिर भी अपने संदेशवाहकों को भेजता है और अपने दरबार में वह एक अधिक से अधिक पैसे देने के लिए कहता है कि जो इन तीनों प्रश्नों का जवाब देता है उन्हें बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। पहले प्रश्न के जवाब में कई लोगों ने कहा कि राजा को अवश्य एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए और तब उसका बहुत ही कठोरता से पालन करना चाहिए, और इस तरीके से, केवल इस तरीके से ही उन लोगों ने कहा कि राजा प्रत्येक समय को नियमित समय से कर सकता था। अन्य लोगों ने कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, यह सबसे आसान था कि किसी भी कार्य को सही समय पे करने के लिए हमें निर्णय करना चाहिए। राजा इन सभी चीजों को नोटिस करते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, और उन पुलिस प्लीजर जो बेकार के आनंद थे उन्हें वह अवॉइड करते हुए, उन्हें छोड़ते हुए, और हमेशा उसे आवश्यक कार्यों को करते हुए प्रतीत होता है कि उसे किस समय पे किस कार्य को करना चाहिए। फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल तैयार करना चाहिए, एक संगठन तैयार करना चाहिए जो उसके प्रॉपर नियमित समय से कार्यों में उसकी सहायता कर सकेंगे। यह इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति किसी असंभव कार्य को सही तरीके से ढूंढ निकालेगा और बिना किसी अन्य की सहायता से वह सही समय पर सही कार्य को, यानी प्रत्येक कार्य को करेगा। लेकिन तब अन्य लोगों ने कहा कि देयर वर सम, कुछ ऐसी वस्तुएं भी हो सकती हैं जो बहुत ही आवश्यक हो सकती है। ये वस्तुएं या ये कार्य को करने के लिए हमें किसी काउंसलर का निर्णय का इंतजार नहीं करना चाहिए, इंतजार नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह बहुत आवश्यक है कि किसी कार्य को भविष्य को देखते हुए करना चाहिए, और ये केवल मैजिशियन, केवल जादूगर जो ऐसा कर सकते थे। राजा इसलिए वह मैजिशियन जादूगरों के पास जाना पड़ा, या जादूगरों के पास जाना का निर्णय किया। उसके जवाब में, दूसरे प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों का कहना है कि लोगों को आवश्यक कार्य राजा के उसके जो काउंसलर हैं, जो उस संगठन में सदस्य, उन सदस्यों के द्वारा कार्य को आवश्यक रूप से करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि पुजारियों को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए, और कुछ दूसरे जो थे वह कहे कि इसमें डॉक्टरों को भी सिलेक्ट करना चाहिए, और फिर भी अन्य लोगों ने कहा कि नहीं, उसमें सैनिकों को भी समाहित कर लेना चाहिए। तीसरे प्रश्न के जवाब में कुछ लोग विज्ञान के बारे में बातचीत किए, जबकि अन्य लोगों ने लड़ाई के लिए चुना, और फिर भी अन्य लोगों ने धार्मिक पूजा पाठ करने के बारे में सोचा और कहा। उन राजा के प्रश्नों के जवाब जो थे बहुत ही अधिक भिन्न थे। राजा संतुष्ट नहीं होता था कि वह किसे इनाम पुरस्कृत करे। फिर भी इसके बावजूद भी उसने निश्चित रूप से उस हरमित को ढूंढ निकालने का निर्णय किया, जो बुद्धिमान तरीके से उसकी बुद्धिमत्ता से वह उस प्रश्नों का जवाब पा सकता था। The hermit lived in a wood which he never left. वह सन्यासी एक जंगल में रहता था जो कभी भी इधर उधर नहीं जाता था। उसने किसी व्यक्ति को नहीं देखा, लेकिन सबसे साधारण लोग, और इसलिए राजा ने साधारण कपड़ों को पहन करके उसके पास जाने का निर्णय किया। He reached before he reached, उसके पास पहुंचने से पहले
hermits heard the king left his horse with his bodyguard and went on alone. उसके पास पहुंचने से पहले सन्यासी की कुटिया के पास जाने से पहले राजा ने अपने घोड़े से उतरा और अपने बॉडीगार्ड को छोड़ करके अकेले उस कुटिया के पास गया. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे कि राजा सन्यासी की झोपड़ी के पास आया, उसने उस सन्यासी को जमीन में सामने कुछ खोदते हुए देखा और उसने सन्यासी ने राजा का सम्मान करते हुए अपनी कार्य को कंटिन्यू रखा. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. जैसे कि सन्यासी बूढ़ा और कमजोर हो गया था और कार्य को करते हुए वह थक गया था, इसलिए वो बैठ के लंबी सांसें ले रहा था. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to the right things at the right time. Who are the people I need most, and what affairs are the most important? The hermit listened to the king, but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. राजा सन्यासी के पास गया और बोला, कहा कि मैं आपके पास आया हूँ. हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इन 3 प्रश्नों के जवाब कि मैं कैसे इन चीज़ों के बारे में सही समय पर सही तरीके से सीख सकता हूँ. जो लोग उन्हें मेरे पास आए जिनकी मुझे बहुत ही आवश्यकता थी, और उन महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण अफेयर क्या हो सकते थे, उस कार्य क्या हो सकते हैं. सन्यासी राजा की बातों को सुना, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला. वह जमीन को खुदाई करते रहा. वह थक गया. वह टायर्ड सेट किंग. राजा ने कहा कि आप थक गए हैं, आइए इस फावड़ा को मुझे आपके कार्य को करने के लिए दीजिए. सन्यासी ने कहा धन्यवाद, और उसने राजा को उस फावड़ा को दिया और तब वह उस जमीन पर बैठ गया. स्टूडेंट्स, पैराग्राफ सेकेंड I will teach you next video. Okay, that's all. Thank you.